Good morning, students. Hope you are all doing well. So let's continue with our part 13 of the similar triangle series. Do you know what we are going to do today? आज हम एक important problem solve करने वाले हैं. This one, okay? And this problem is based on the AAA criterion of similarity, angle criterion of similarity. We have already proven the theorem on this basis and also have solved some problems. I mean, if there are any new students or new viewers, I recommend them to go through the previous parts to understand this in a better way. And this is equally important for state and the central syllabus. Again, for basic and standard दोनों के लिए equally important है because this is your direct question from your textbook. ठीक है? So let's quickly start. तो ये गिवन फिगर है. डोंट गेट स्केर्ड बाय लुकिंग एट इट कि भाई कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. आई विल मेक श्योर दैट इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू. तो ये क्वेश्चन के साथ जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम इसको एनालाइज करते हैं. इट सेज इन द गिवन फिगर, इन दिस पर्टिकुलर फिगर, मैथ्स में हम लोग फिगर कहते हैं, डायग्राम नहीं. So here AB is parallel. This is symbol of parallel. AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Okay. ये देखिए, where are these three lines? This is AB. It's parallel to CD. ये देखिए, AB is parallel to CD and the CD is parallel to EF. Okay. FE या फिर EF. ठीक है. So when these three lines are parallel, I mean, so AB is indirectly parallel to EF. ये AB EF को भी parallel होता है, CD इसको भी parallel है और ये आपस में पैरेलल है. राइट. तो ये पैरेलल वाली जो कॉन्सेप्ट है हम इसको यूज करके सॉल्व करने वाले हैं. फाइन. तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. यहाँ पे जो मिसिंग साइड्स है, दिस इज एक्स, हमको ये एक्स फाइंड करना है, दिस एक्स, and this y, this side हमको y find करना है. Okay. Before we dive into that, there are some essentials, prerequisites जिसको हमको समझना है, जो हमारे बेसिक्स है. हम इसको ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं. इसको हम एक बार क्विक रिकैप करते हैं. फाइन. इफ यू लुक एट दिस, अगर आप यहाँ पे देखते हो, so what did I draw is like I have drawn two lines which intersect or which cross each other. So यहाँ पे angles बन रहे हैं. देखिए, ये जो red वाले जो angles है और ये जो black वाले जो angles है, इनको कहा जाता है vertically opposite angles. What do we say? क्या बोलेंगे इसको आप? Vertically opposite angles. ठीक है. Let's do one thing. Let's name them. So ये मानो ये angle A है, angle B, angle C and angle D. So in this, angle A and angle C are vertically opposite angles. ठीक है. angle A and angle C. Similarly, what else? एक और क्या यहाँ पे? angle B and angle D are also vertically opposite angles. ठीक है. तो is there any relation between them? Yes. कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, तो दे आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट. इनकी मेजरमेंट यानी इनके जितने भी डिग्रीज होंगे वो सेम होंगे. मानो अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, अगर मानो ये 70 है तो ये भी 70 है. राइट. सो विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर. एंड मोर ओवर वन मोर थिंग. देखिए, हम यहाँ क्या देख रहे हैं? we see two parallel lines over here. Let's name this line as L and this line as M. Two parallel lines. और ये जो N line है ये इसका ट्रांसवर्सल है. ठीक है. So in this one I have numbered some angles here. You could see that 3, 4, 5, 6. It doesn't mean कि 1, 2, 3 नहीं है, 1, 2, 3 भी है. We'll see that after a while. तो यहाँ पे ये जो आपको दो ब्लू कलर्स और दो ब्लैक्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना? तो इसमें ये जो दो ब्लैक है, I mean दो ब्लू है और ये दो ब्लैक है, इनको कहा जाता है alternate interior angles. Okay? What do we say them as? Alternate interior angles. Fine. So these alternate interior angles are always equal. कौन है alternate? देखो, ऐसे देखिए, 4. ओके. अगर हम ये 3 से काउंट करना शुरू करते हैं, 3 के बाद नेक्स्ट एंगल होता है 4. बट ऑल्टरनेट की हम बात कर रहे हैं, तो 3, 4, अगर इफ यू इग्नोर 4 फॉर ए वाइल, सो ऑल्टरनेट क्या हो जाता है इसका? 5. सो 3 and 5 आर सेम. देखो, ये 3 और ये 5, इनकी मेजरमेंट सेम होगी. सिमिलरली 5 अगर हम छोड़ते हैं तो देन होगा 6. तो 4 and 6 आर ऑल्टरनेट. ये ऑल्टरनेट, ये भी सेम हो गए. ठीक है. इनके मेजरमेंट सेम हो गए. सो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5. ठीक है. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. इसी तरह यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं. ओके, विच वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम ए लॉन्ग. सो अगर मानो यहाँ पे मैं इफ आई नंबर इट एज 1 and this as 2 and this 5, 6 and okay, this one as 7 and this one as 8. So यहाँ देखिए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. एंगल 1 and एंगल 5 ओके आर करस्पॉन्डिंग, यानी 5 वाज प्रीवियसली इक्वल टू 3. और यहाँ पे ये भी रिलेशन है कि 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. 4 and 8 are corresponding angles. 2 and 6 are corresponding angles. 3 and 7 are corresponding angles. वो भी आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है. तो आई हैव शोन यू corresponding and alternate interior angles. Remember that. ये बेसिक्स बहुत एसेंशियल है in order to solve this problem. Fine. So
let's begin with our first set of triangles. यहाँ पे आपको दो बिट्स है, जैसे मैंने बताया आपको x एंड y फाइंड करना है. चलो पहले हम x फाइंड करते हैं. सो x के लिए x कहाँ पे आ रहा है, हम ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. देखिए x यहाँ पे आ रहा है, तो लेट्स टेक दिस ट्रायंगल, हम उसको ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन फ्रॉम हियर. वी विल कंसीडर द ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, और हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं उसके साथ साथ x हमको निकालना है ना, तो इसकी यहाँ पे जो इमेज होती है ना, रिफ्लेक्शन, ये ट्रायंगल लेते हैं. तो इसको हम लेंगे नाम EFC. ओके, एंड ट्रायंगल बताइए EFC. ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में, आई रिपीट अगेन, ABC एंड EFC. इन दिस वन अगर आप देखें तो ये दो लाइन, दो एंगल्स, यानी ये जो C वाला एंगल है, यहां से भी C होगा, वो यहां से भी C होगा. तो आपको कैसे लग रहा है, देखिए ये लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, सो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये सी को आप कैसे पढ़ेंगे, बिकॉज लाइक सेम सी एंगल यहाँ और यहाँ भी है, तो वी कांट से सी इन बोथ ट्रायंगल्स एज ऑफ. ओके, सो विल नेम इट एज ECF. okay, I'll use other coloring. So in this one, the angle ECF, this is also a way to represent an angle, is equal to angle ACB. ठीक है, आपको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये कैसे आपको मालूम है कि ये इक्वल है. ये है वर्टिकली, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. चलो, हमने एक नई चीज यहाँ पे देखी. देन गोइंग फॉरवर्ड, इट वाज ऑलरेडी बीन सेड. अब हम ये जो दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, इसमें यू कैन सी दैट AB इज पैरेलल टू EF और FE. दिस वाज बीन गिवन. AB is parallel to EF. Okay, we'll write that as well. It's better like I'll use, otherwise एक और लाइन हम यहाँ लिखते हैं. So AB, since AB is parallel to EF. ठीक है, this AB is parallel to EF, ये गिवन पार्ट था हमारा. So अगर हम इन दोनों पैरेलल लाइंस लेते हैं और इसको मानो ये ट्रांसवर्सल है. For these two parallel lines, let's say this is transversal, ये transversal है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गए alternate interior angles. Okay, for these two parallel lines, this considered as a transversal, so these are alternate interior angles. Alternate interior angles. So कौन से बताइए, E and A. Okay, angle E is equal to angle A. ठीक है, उसी तरह another angle, that is angle F and angle B. ये ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल में एंगल F आ रहा है, ये ट्रायंगल में B आ रहा है. सो ये दो पैरेलल लाइंस के लिए दिस टाइम लेट अस कंसीडर दिस एज अ ट्रांसवर्सल. हम इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो इसकी ऑल्टरनेट एंगल, यानी इसके लिए ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, दैट इज B and F. एंगल B इज इक्वल टू एंगल F. आपको इमीडिएट रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये दो एंगल्स कैसे इक्वल है. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फाइन, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, तो व्हाट डिड वी शो सो फार इज कि इन दीज टू ट्रायंगल्स, जो हमने ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर किए थे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFC, ABC एंड EFC, इसमें तीन एंगल्स इक्वल हो गए. देखिए, ओके, दिस वन एंड दिस टू एंड दिस वन 3. तो अभी हम क्या यूज कर सकते हैं जब 3 एंगल्स इक्वल है, तो बाय ट्रिपल ए. हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हमारी स्टार्ट में कि बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी. इससे हम क्या कह सकते हैं, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, व्हाट कैन वी से, वी कैन से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, विच टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFC. ओके, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFC. KFC नहीं, हाँ. ओके, सो इट इज EFC. so these two triangles are similar. so जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि their sides, their sides are proportional, that is the ratio of their sides are equal. तो इनके साइड्स की रेशियो इक्वल होती है. वो कौन से, ये देखिए, ये ट्रायंगल में AC और ये ट्रायंगल में CE. okay, let's take the ratios. so since they are similar triangles, the ratios of the sides AC by CE equal to BC by CF. Fine, and the one more side is AB by FE or EF. AB by EF. Okay,
हमने क्या किया, वी हैव शोन दैट के 3 एंगल्स आर इक्वल इन दीस 2 ट्रायंगल्स, सो दे आर सिमिलर, सो देयर रेशियोज आर आल्सो इक्वल. नाउ अब यहां से हम क्या करते हैं, अब हमको जो we don't need to take the 3 ratios, we just have to consider the 2 ratios. Okay, so ये फर्स्ट वाली जो रेशियो थी आपकी AC and CE, okay, has nothing to do, यहाँ हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हमको AC और CE फाइंड करना नहीं है. सो फॉरगेट अबाउट दिस, लेट अस इग्नोर, लेट्स फोकस ओनली ऑन दीज टू. हम इन दो पे फोकस करते हैं. ओके, दिस रेशियो एंड दिस रेशियो. ठीक है, तो आई हैव टू सेव माय स्पेस, तो मैं यही कंटिन्यू करता हूं. तो मैं अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं BC एंड CF के. तो बताइए BC कितना है यहाँ पे, BC इज अननोन, we have to find out that is x, BC is x by CF. So can you tell me how much is CF? CF is given as 3 centimeter, so this is 3 centimeter. Now coming to AB, the length of AB is 7.5. okay, AB is 7.5 centimeter by EF, so EF is 4.5, right? So what we'll be doing is, like, we'll cross multiply this as we have to find out the value of x. So x is equal to 7.5 into 3 by 4.5. okay, तो अभी हम कैंसलेशन करते हैं. 3 ones, okay, 3 ones are 3, 4 minus 3 क्या होगा 1, we put it here. ये डेसिमल पॉइंट यहाँ लिखते हैं. So 15 it is, 3 5 is 15. okay, so now this is 1.5, 1.5 and 7.5 have a common factor, so we can cancel these as well. How? That is 1.5 ones are, 1.5 fives are. okay, you just multiply it and check it. So 5 on the whole, we are left with 5 here and nothing over here, that is 5 by 1 is nothing but 5. So we got the value of x as 5. Hope you understood it. This was easier, right? अभी हम second bit करते हैं. अभी हम bit number 2 solve करते हैं. देखिए, we also have to find y. अब हमें y भी find करना है, तो I need some more space. तो मेरे को एक थोड़ी और space चाहिए, तो I'll erase this part. Maybe I have to use this space. ठीक है, बट मेक ए नोट ऑफ इट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस प्रॉब्लम, और आगे भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा. चलो अब हम इसको यूज करते हैं, इस स्पेस को. अभी हम बिट नंबर 2 पे जाते हैं. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y नाउ फ्रॉम हियर, यहां से. अभी हम देखो कि y कहां आ रहा है. हियर इज y. सो कैन वी डू वन थिंग, विल कंसीडर दिस ट्रायंगल. इसको हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, दिस वन BCD. ओके, उसी तरह अब इसके साथ हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं ना भाई, जो हम उसके साथ एक और पैरेलल आना चाहिए साइड. तो ये देखो, दिस इज पैरेलल टू दिस, आई मीन CD इज पैरेलल टू EF. सो विल कंसीडर दिस बिगर ट्रायंगल. ओके, BFE. ओके, सो दिस वन, आई रिपीट, दिस वन एंड दिस वन, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. तो विल राइट इट ओवर हियर. इन ट्रायंगल which triangle BCD, in triangle BCD and another triangle BFE. ओके, ये दो ट्रायंगल्स में. अब देखिए यहाँ पे भी हम 3 एंगल्स का क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं. अब अभी हमको ये दोनों ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स इक्वल बताना है. तो इफ यू टॉक अबाउट द एंगल B इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, एंगल B इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द बिगर ट्रायंगल. सो वी से दैट एंगल B इक्वल टू एंगल B इन बोथ द ट्रायंगल्स. हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि हम ये दो को कंसीडर कर रहे हैं. सो एंगल B आर इक्वल टू एंगल B. हाउ कम? इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स. फाइन, अभी आ जाइए. अभी ओके, ये था हमारा छोटा ट्रायंगल, ये है हमारा बड़ा ट्रायंगल, तो इसमें B कॉमन हो गया. अभी ये दो पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, लेट अस कंसीडर दीस टू बी द पैरेलल लाइंस. ये पैरेलल लाइंस है. अगर हम इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं, अगर हम ऐसे ट्रांसवर्सल लेते हैं, सो हियर दिस एंगल E, ओके, एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल D. हाउ कम? ओके, ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा. एंगल E यानी कि पूरा लेना पड़ेगा आपको, ये भूल जाइए, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस. ये हो गया हमारा काम इससे. सो अभी ये जो हमारा एंगल E एंड दिस एंगल D आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये पैरेलल लाइंस में ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. उसी तरह एंगल F एंड दिस एंगल C आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सो विल मेंशन ओवर हियर एंगल E एंड एंगल D. Angle E is equal to angle D and angle F equal to angle C. Angle F equal to angle C. How come? What is the reason for this? They are a pair of corresponding angles. A pair हम इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेट हो गया corresponding angles का. ठीक है, ये रीजन स्पेसिफाई करना जरूरी है. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड. ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं स्पेसिफाई होता है, वेरी रेयरली दे स्पेसिफाई. तो अब देखिए कि हमारे ये दो ट्रायंगल्स, यानी ये छोटा वाला और ये बड़े वाले ट्रायंगल में एक B कॉमन साइड हो गया था, कॉमन एंगल हो गया था, और यहाँ पे ये दो एंगल्स, यानी कि ये स्मॉलर ट्रायंगल में ये एंगल और बिगर ट्रायंगल में ये, और
स्मॉलर में ये और ये, यानी कि 3 एंगल्स हमने इक्वल बता दिए. सो अभी क्या यूज कर सकते हैं हम? बाय ट्रिपल ए criteria of similarity. By triple A criterion of similarity, what can we say? We can say that these two triangles are similar, right? That is, triangle BCD, triangle BCD is similar to triangle BFE. BFE. So when these two triangles are similar, obviously we'll take the ratios. हम ratios लेंगे, ठीक है? तो अभी हमारे टाइम को सेव करने के लिए we'll consider only the ratios that are required. So ये y हमको फाइंड करना है, ये 4.5 है, तो हम ये दो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? So that is CD by FE, CD by FE equals to, okay, there's another one. ये साइड जो x था, ये छोटे वाले में, इस x की वैल्यू ऑलरेडी वी नो, इट इज 5, दिस इज 5, ओके. सो ये छोटा और ये बड़ी ट्रायंगल में ये पूरा, यानी ये दिस होल, okay. So it is going to be 5 plus 3, that is 8. I repeat again, in the smaller triangle we are considering this one side BC by BF, BC by BF, ठीक है? So BC is just 5 centimeter by BF is the whole, that's 8 centimeter, okay. And then CD is unknown, we are supposed to find that y, and then FE, okay, FE was specified as 4.5, ठीक है? चले अब हम इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी y इक्वल टू 5 इंटू 4.5 बाई 8, राइट? यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई के आई मीन कैंसलेशन नहीं हो पाता, कोई कॉमन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 इंटू 5. सो ये हो जाएगा 5 5 इज 25, 5 4 20, 20 plus 2 22, so this is 22.5 divided by 8, okay. हम इसका क्विक डिवीजन करते हैं. आई नीड सम स्पेस, मे बी आई बी इरेजिंग एनी ऑफ दीज पार्ट्स, ओके. चलो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, बट स्टिल आई इरेज दिस नॉट टू मेक दिस लुक क्लटर. सो बेटर आप इसको वीडियो पहले ही पॉज करो और इसको समझ के बिना देखकर लिख लो, तो क्विकली विल सिंप्लीफाई. 8 divides 22.5, okay. I shouldn't show you all these things, but still मैं आपको आंसर बताने के लिए बता रहा हूँ. So 8 3s is 24, which is greater than this. So 8 2s 16, ठीक है? So 22 minus 16 is 6. So we'll bring the 5 down because 6 is smaller than this. So there was a point over here, so we have a point here. So 8 8s 64, right? So then 1, we had a point, 0. 8 2s is 16 is greater than this, so we'll go with 8 1s is 8. We get a 2 here, which is not again divisible by 8. 2 points are 0. 8 2s are 16. तो ये इसी तरह चलने वाला है, ऐसा लग रहा है, तो ओके, तो इसको रोक दो. Just consider the 2 digits after the decimal, okay. When it's a non-terminating decimal, so what we do is we consider only 2 digits after the decimal, okay. So यहाँ पे y वैल्यू हमको हो गई some 2.81 centimeter approximately. Fine. So hope you understood this. Initially आपको कुछ complicated लग रहा था, देखो मैंने आपके लिए कितना इसको simplify कर दिया. I mean by showing all the required prerequisites, everything I made it very very simple for you. So इसको तो like जरूर बनता है. So at the same time see that you have already hit the bell icon. If not, please make sure you hit the bell icon and please don't forget to share it with your friends. Okay. So we'll meet in the next video with some more interesting and important problems. Till then, goodbye.